Good morning to all of you. Uh, Write down your names in the chat box for the attendance purpose, and then we will start our class. So quickly write down your name in the chat box with the department. Okay, thank you all, and then we will start our class. Uh, Good morning to all of you. Today, our topic of discussion will be the algorithm and the flowchart. So, previously we have discussed about the basic things of computer, what are the computer components and all of those. But now we are moving to the next part, that is the algorithm and the flowchart. Okay. So before going, algorithm and what is the flowchart? Let me take a example first. Okay. First, the first thing is that suppose we have to add two numbers. The thing is that we have to add two numbers. Just a simple concept, no right of coding here, nothing much. Just a simple concept that we need to add two numbers, just a mathematical problem. So how to do this addition, how to add these two numbers? So while we are having a problem, while a question, we can see or we can visualize a question, that our problem or our question statement is that we need to add two numbers. Now this is our problem. Now this is the question that we need to solve. Now the next thing is that how we can solve this, or what is the process. We need to find out the process. What is the process, or what are the process actually available or we can do to solve this particular query, that addition of two numbers, or we have to add two numbers. So we need to find out the process, or we need to find out the steps. So we need to do the step by step part to get our actual result. So to do the addition of two numbers,
while this question have been tell or have been into pop up into your window, what is the next thing comes up into scenario that how we can do this. Now, as in general, it is a very common question or it is a very easy question for a student of BTech level, that addition of two numbers. But if this same problem is given to a class 1 or a nursery student, the addition of two number is very much difficult for him because he is actually learning this all of the things. Now, if a BTech level student is actually asking that addition of two numbers, how to do that, then anyone can tell all the steps that we have to add two numbers, addition, everything, etc. But no, this is not the correct answer. We need to mention each and every step. We need to mention each and every step to solve this particular problem. We need to mention each and every step to solve this particular problem. So how we can solve this particular problem, addition of two numbers? First of all, what we need to find out that what we need to solve this particular query. So the problem is addition of two numbers. So first of all, we need two number or two values. First of all, we need two number or two values. Now this two number or two values can be two types. First one, it will be a user defined, means we are taking an input from the user, and second one, the number can be defined by the programmer itself. So there will be two conditions. Okay, so that is a broader part into while we are going into the coding. In general, we need two values. In general, we need two values. Now these two values, all the things I am talking about, this is a particular in general terms. So we need two values that is needed to add it, that are needed to add it. So if we don't have these two number, then the addition of two number will not be possible. So our first step is that we need two numbers. Fine. Second step is that we need to add these two numbers. So now we have the two numbers, suppose 4 and 5. So we have got the two numbers first, and then we are going to add these two numbers. So our first step is getting the numbers. Now our second step is addition of those two particular numbers. Now our in the second step, the addition will be happen, and in the third step, our result will be displayed. So this is the particular three step to do the or to solve this particular simple problem, addition of two numbers. Now whatever I have told, it is in a general term. Addition of two numbers, we need two numbers, we need to add those two numbers, we need to display the result. Now going into some broader part or into the extent part, where in the C programming, in the case of programming, not any C programming, in the case of any type of programming, the programming language could be anything like C, C++, Java, Python, MATLAB, anything can be the R language, anything can be the platform. Not at all. The issue is that is not an issue. The issue is if the thing is need to be solved by a program, by a programming language, then how we can solve that, then how we can solve that. So in case of programming, as it is a computer or it is a device, so the device, whenever it is a device, actually in our previous classes we have learned that a device needs to hold the value, a device needs to store the value. Now a value cannot be stored anywhere. So while in the case of programming, we need something that is called variable. We need something that is called variable to store that particular value. Now in case of programming, we need to add two numbers. Now simply meaning that addition of two number means we need first two variables. We first need two variables where the value of those variables will be inputted. So we need our first step in the case of programming, we need to take two variables. So suppose I am taking two variables like A and B. So A and B are the variables where the values will be assigned. Now the value can be assigned by two ways. Either the programmer is defining the values, or second case, the value will be inputted at the runtime. So while the program will be running, at that time the value will be inputted by the user. So this is two scenarios. But our first step is that we need two variables to store the values. Now our second step is addition.
Now A and B are the variables that are holding the value. Which value? The value are needed to add. So A and B have the values that needed to add. But the thing is that, yes, Manish, what is your query? Sir, where these steps are written, sir? All the things will be displayed, but let me first tell you and then I will show all the things. Okay, means why I'm saying all this, you will understand soon, because let me finish it first. So then the addition, then the value needs to be stored in some place. So addition is the value of A and B is there. Now if we are doing the addition of this particular thing, then the value or the result needs to be stored in some place. So mean we need three variables A, B and C, where the value is needed to store. The C will store the values, the addition will be done in later part. So why I am saying all these things? Because whatever the problem as an engineering student, whatever the department you have, as an engineering student, whatever the problem will be there, or whatever the problem will come into your exam or anywhere that you will face, or the real life problem you will face, the first thing is that we need to visualize the steps, or we need to find out the steps that how we can solve the process. So that's why I'm talking about this particular things, the steps. So these are the particular steps. Anything, any problem that we need to find out the steps further. What are the steps that is involved or that can be done to solve out the particular process? Now let me show you whatever I have saying particular thing. So all the thing is given. So we can see here, to find the sum of two numbers, to find the sum of two numbers, two things is displayed. First one is an algorithm in the left part, that is called an algorithm, and in the right side there are some diagrams available, and under the and inside the diagram some values or something is written. So two things are given in similar kind of in a parallel situation. First one in the left part, that is called an algorithm, and in the second part where some block where some diagrams are present, that is called the flowchart. So now our we can see our question in the upper side, that is to find the sum of two numbers. So to find the sum of two numbers, the problem, it is the problem, and this problem needs to be addressed. To address this particular problem, we need to first find out the steps. So these steps can be find out by two process. One is algorithm, and second one is the flowchart. Algorithm, it is the means we in case of algorithm, what is the, we can, as a formal definition we can say that an algorithm is a steps, or is a set of well-defined instructions in sequence to solve the problem. I repeat, just remember, just hear the things once again. The algorithm is a set of well-defined instructions. Algorithm is a set of well-defined instructions in sequence to solve the problem. So the algorithm is a set of instructions. So in the left side in the algorithm, we can see that there are a set of instructions given as step 1, step 2, step 3, followed by step 6. So there are 6 steps. This is called the set of well-defined instruction. My second term is that in sequence. So the steps need to be in sequence. Otherwise, we are not getting our result. Suppose in the left side of the algorithm, there are 6 steps are available. So after the first step, that is start, we mention the step 4 in the step 2. Suppose sum equal to a plus b in the step 2, and the step 2 and 3 will become in the later part. So if we are adding sum a plus b in step 2, where a and b have no type of value, where a and b have no value, then will be the addition is possible? No, the addition will not be possible because A and B have no value. So the main thing, another important thing here is that the set of instruction is need to be in a sequence. So we need to follow the sequence. We need to find out the steps in sequence, that what sequence we can follow to get our proper result. So this is the thing called algorithm. So in a formal definition of algorithm, we can say that it is a set of well-defined instruction. It is a set of well-defined instructions in sequence to solve the problem. I repeat, it is a set of well-defined instructions in sequence to solve the problem. So
what these are the steps. First of all, we need to find out the steps, and second of all, we need to find out the steps in sequence. We need to write down the steps in sequence to solve any type of query or any type of problem. Now coming to the right side of the diagram, that is the flow chart. This is called a flow chart, where we can see a different type of shapes are available. Some are circle, some are some rectangle, some are some circular type of things. So there are different types of shapes are available. But the thing is, we can see that the steps of algorithm is written into the diagram box. The steps of algorithms are written into the diagram box. In whatever the diagram box are, into that particular diagram box, the steps are written. So this is called a flowchart. So what we can say in the formal definition of flowchart? So flowchart, we can say that it is a type of pictorial representation. It is a type of pictorial representation of an algorithm. It is a type of pictorial representation of an algorithm. So the first thing, important thing is that whatever your problem or whatever the real life challenges you people face, all of the things it is talking about, because as an engineer student, these two terms, algorithm and flowchart, is very much important while you will continue to your upcoming semesters. While many other things you people learn, any numerical problem or any type of problem you people are going to solve, these two steps, algorithm and flowchart, first you need to draw or you need to write these particular two steps. Otherwise you will not process, or you will not be able to process. Now anyone can say that, why we are not able to process. Oh, it is very easy things. What when the problems comes, we can see that and we can visualize and we can go as per the thing. But the thing is that the challenges or the problems or the queries you people are going to face in your upcoming semester, that will be not so easy like sum of two numbers. That is not going to be easy like sum of two numbers. It will be a challenging problems, challenging questions. So to solve the challenging questions, we need to first write these algorithms, because it will help us to execute the steps. We can see it, we can visualize it, that what are the steps we need to go through, and as per the steps we can write our problem code. We can write our problem code, because while you are going to write a code, it will not be something like 4 or 5 lines, because at the end, while you are completing your BTech and all of the things, whatever the problems when you are going to solve, the code for that particular problem may be up to 70, 80 and 100 lines. That's why we need to break down the things first, and then we can execute all of those particular things. So algorithm and flowchart is very important thing uh, in case of any type of to solve any type of problem and query. So this is called algorithm and this is called flowchart. So algorithm is, we can say that algorithm, it is the process to find, or we can say that algorithm is a set of well-defined instruction in sequence to solve the problem. So I repeat, what algorithm is? Algorithm, हम लोग algorithm पे ये बोल सकते हैं कि algorithm एक set of well-defined instruction है. कुछ instruction है, set of algorithm, set of well-defined. कुछ instruction है जो इन सीक्वेंस पे होना चाहिए, एक के बाद एक सीक्वेंस पे होना चाहिए, जो सीक्वेंस फॉलो करके हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एंड फ्लोचार्ट क्या है? फ्लोचार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. सो वी कैन सी अ सैंपल एग्जांपल. हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स. दो नंबर यहाँ पे है जिसका हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो अभी तक मैं इसके बारे में बात किया हूँ, टू फाइंड एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट. So these are the things. Now coming to the flowchart part, we can see different type of shapes here. So every shape has some particular notification. So every particular shape has some particular notification. Yes, Aniket, what is your query? Sir, please make us understand in Hindi, sir. The scenario is that in BTech you will have to answer all the things and questions in English. Yes, sir. In question answer we can write, sir, but first we'll have to understand, na, sir. So that's why We'll you need understand to. properly, then only we can write in I am English so language, sir. we need to We are not.
Okay, I will We are talk. not able to understand, sir. Anyone have any those who have problem, who are not understanding in English, kindly raise your hand. I want to see that how much of you are having problem to understand my topic in English. They are raising, sir. Okay, I can see that I can see the numbers, and then I can. Okay, kindly raise down your hand. हैंड रेज डाउन कर लीजिए, कोई इशू नहीं है. ओके, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ पहले कि अभी मैं फिलहाल आप जो भी आप लोग का प्रॉब्लम है एज ए बेसिक और इंट्रो, अभी मैं इंग्लिश में क्लास को हिंदी में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, बट मैं पहले से ये क्लियर कर दे रहा हूँ फॉर द सीएससी स्टूडेंट्स. आई विल नॉट टॉक अबाउट एनी अदर डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स. फॉर द सीएससी स्टूडेंट्स जो थर्ड सेमिस्टर पे हम लोग के डिपार्टमेंट पे क्लास करेंगे, प्लीज अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फॉर द थर्ड सेमिस्टर सब सब्जेक्ट सारा क्लास इंग्लिश पे होगा. तो अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो क्लासेस होता है वहां पे अपना क्लासेस और अपना जो भी है उसको प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा, क्योंकि इट इज नॉट अभी के लिए फिलहाल. जब अगर अभी से आप लोग ये इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो बाद में जब आप लोग कोई भी जॉब इंटरव्यू बैठेंगे या कोई भी सेशनल टॉक्स होगा, जब कोई स्पीकर आएगा, जब कोई ऑनलाइन लेक्चर स्पीकर डिलीवर करेंगे, तो ऑल द थिंग्स मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस पे क्या होता है, सब इंग्लिश पे स्पीच डिलीवर करेंगे, तो तब आप लोग को प्रॉब्लम होगा. तो अभी से आप लोग स्टार्ट कीजिए कि इंग्लिश पे प्रैक्टिस करें और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल पे अपना जोर ज्यादा दे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द बीटेक आप लोग को इंग्लिश पे ही अपना इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू जो भी है सब कुछ देना होगा, ठीक है ना. तो दिस इज माय सजेशन फॉर यू, मींस इट इज इम्पोर्टेंट एज वेल बिसाइड द सब्जेक्ट्स. ओके, तो नो इशू ऑन दैट. अभी मैं फिलहाल हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट क्या है, अभी तक तो मैंने ये बताया, और उसका एक बेसिक एग्जांपल, और एग्जांपल को लेके हम लोग बात किए कि कैसे क्या होता है. अभी मैं जाता हूँ इसका फॉर्मल डेफिनेशंस एंड ऑल ऑफ द थिंग्स. ओके, तो एल्गोरिथम क्या होता है. तो एल्गोरिथम, एज आई सेड, मैंने पहले ही बोला कि एल्गोरिथम क्या होता है. ये एक सेट ऑफ, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है ये, और वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन जो एक सीक्वेंस में होना चाहिए. तो एल्गोरिथम्स क्या होता है, वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वेल डिफाइंड होता है, जो हम लोग हर एक इंस्ट्रक्शन को मीन्स प्रोसेस करते हैं, और सीक्वेंशियली प्रोसेस करना होता है. अगर हम लोग सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम लोग सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारा जो आउटपुट और डिजायर्ड रिजल्ट होगा वो हम लोग को नहीं मिलेगा. नाउ द एल्गोरिथम में क्या होता है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तीन चार कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक एल्गोरिथम पे, इनपुट, आउटपुट, डेफिनिटनेस एंड फाइनाइटनेस. तो अभी तक मैंने जो एडिशन ऑफ टू प्रोग्राम्स का बात किया, जिसका एग्जांपल लेके हम लोग अभी तक बात किए, जिसके एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट हम लोग देखे, तो अगर हम लोग उसको सोचे, उस हिसाब से अगर हम लोग एल्गोरिथम का कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करें, तो क्या क्या मिलेगा हम लोग को, चार चीज मिलेगा. एक इनपुट, दो आउटपुट, तीन पे डेफिनिटनेस एंड फोर पे फाइनाइटनेस. तो इनपुट में पहले क्या, हम लोग जब क्वेरीज, जब हम लोग दो नंबर के एडिशन वाला प्रोग्राम सॉल्व कर रहे थे, तो फर्स्ट हम लोग को क्या चाहिए था, इनपुट. बिना इनपुट के हम लोग का प्रोसेस काम नहीं होगा. तो इट इज इनपुट अ कैरेक्टरिस्टिक. तो इनपुट एल्गोरिथम का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है. सेकेंड वन, आउटपुट. तो हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स का प्रोसेस करते हैं उसका आउटपुट आना चाहिए. तो आउटपुट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम. तीन नंबर पे क्या होता है, डेफिनिटनेस. तो हम लोग जब कोई प्रॉब्लम्स और क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सोचे हैं, वो हम लोग को पूरा क्लियर होना चाहिए. हर एक चीज पूरा क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज हमारा वो प्रोसेस
सही से एग्जीक्यूट नहीं होगा, सो दैट इज कॉल्ड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक डेफिनिटनेस। तो ये हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है डेफिनिटनेस। फोर्थ क्या होता है? फाइनाइटनेस। सो if the instructions of an algorithm are executed, the algorithm should terminate after this. So हम लोग जितना भी एल्गोरिदम्स और स्टेप्स लिखे हैं, जितना भी स्टेप्स हम लोग एक के बाद एक लिखे टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, फिर हम लोग उसको अगर सही से एग्जीक्यूट करते हैं और हमारा प्रॉब्लम्स का जो क्वेरी है, जो प्रॉब्लम है, वो अगर उस एल्गोरिदम्स के एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा आउटपुट सही से आता है, तो ये होता है फाइनाइटनेस। मींस हमारा जो स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम्स हम लोग लिखे हैं और उस हिसाब से हम लोग जो कोडिंग किए वो बिल्कुल सही है। तो ये चार चीज हम लोग को ध्यान पे रखना होगा फॉर एन एल्गोरिदम कैरेक्टरिस्टिक। एक क्या होगा? इनपुट, दूसरा आउटपुट, थर्ड वन इज द डेफिनिटनेस एंड फोर्थ वन इज द फाइनाइटनेस। नाउ द थिंग इज, हम लोग बात किए थे कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट जो भी है वो कुछ प्रोसेस को फॉलो करता है। दैट्स फर्स्ट वन इज द सीक्वेंस। सो सीक्वेंस पहले आता है क्योंकि हम लोग को सीक्वेंस और द स्टेटमेंट्स मींस जो भी एल्गोरिदम स्टेटमेंट है वो हम लोग को सही से प्लेस करना होगा एक के बाद एक। अगर हम लोग सही से एक के बाद एक को प्लेस नहीं किए तो हमारा प्रॉब्लम का आउटपुट सही से नहीं आएगा। देन ब्रांचिंग और द सिलेक्शन, ब्रांचिंग और द सिलेक्शन, ब्रांचिंग और द सिलेक्शन पार्ट पे क्या होता है? कुछ कंडीशंस, कहीं कहीं ऐसा भी प्रॉब्लम्स आ जाता है कि कंडीशंस होना चाहिए, कि कुछ कंडीशंस को हम लोग अप्लाई करना जरूरी होता है। अगर कंडीशन हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो मींस कुछ कुछ प्रॉब्लम के लिए हम लोग को कंडीशन ऐसा ही होता है कि मान लीजिए कभी कुछ ऐसा होता है कि अगर ये वाला a इक्वल टू 5 है तो ये सही है। मान लीजिए कहीं पे एक प्रॉब्लम है क्या कि 3 नंबर होगा, इन 3 नंबर में से कौन सा लार्जेस्ट है, 3 नंबर में से कौन सा लार्जेस्ट है हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। तो 3 नंबर में से अगर हम लोग को लार्जर वाला वैल्यू फाइंड आउट करना होगा थ्रू सम प्रॉब्लम और कोडिंग प्रॉब्लम, तो क्या होगा? हम लोग को उसके लिए कुछ लॉजिक लिखना होगा। तो लॉजिक हम लोग जब कुछ लिखते हैं तो 3 नंबर में से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बड़ा होगा, ये लॉजिक कैसे किया जा सकता है? कैसे होगा? मान लीजिए 3 नंबर है हम लोग का, जो वेरिएबल के हिसाब से प्लेस किया जाए तो ए बी सी में 3 वेरिएबल लिया हूं एट द स्टार्ट, जहां पे ए बी सी नाम का 3 वेरिएबल है। अब क्या होगा? मान लीजिए मैं 3 नंबर लेके बात करता हूँ, 4 5 6 3 नंबर है हम लोग के पास। अब 4 5 6 में से कौन सा बड़ा है? हम लोग आसानी से बोल सकते हैं देख के और सोच के कि 6 सबसे बड़ा है, क्योंकि हम लोग छोटे क्लास 1 2 से अभी तक बीटेक लेवल पे या स्टार्टिंग ऑफ बीटेक लेवल से हम लोग को ये चीज इतना क्लियर हो गया कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। लेकिन अगर हम इसी चीज को कोडिंग के हिसाब से करते हैं तो हम लोग को कुछ लॉजिक लिखना पड़ता है। क्या होगा लॉजिक? 4 5 6 3 नंबर में से हम लोग को 6, अगर जो बड़ा नंबर है उसको फाइंड आउट करना है तो हम लोग को लॉजिक ऐसे लिखना होगा, अगर 6 अगर 5 से बड़ा है और 6 अगर 4 से बड़ा है, मीन्स जो नंबर हम लोग का सबसे बड़ा होगा वो दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इफ एल्स ट्रू फॉल्स, ये सब कुछ स्टेटमेंट्स और ये सब कीवर्ड्स यूज होता है। इफ एल्स, अगर ये वाला सही है तो ये वाला हमारा रिजल्ट आएगा, अगर ये सही नहीं है तो कुछ और रिजल्ट आएगा। तो इफ एल्स ट्रू फॉल्स दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर, सो दिस इज कॉल्ड द ब्रांचिंग or the selection and the loop. Then the loop, the third thing is that loop means हम लोग एक ही स्टेटमेंट को बहुत बार एग्जीक्यूट करते हैं और एक ही स्टेटमेंट को रिपीटेड टाइम एग्जीक्यूट करना पड़ता है कभी कभी कुछ प्रोग्राम्स पे, ठीक है ना। मान लीजिए हम लोग को कुछ मल्टीप्लीकेशन टेबल लिखना है, मान लीजिए 8 का मल्टीप्लीकेशन टेबल लिखना है, तो 8 का मल्टीप्लीकेशन टेबल तो बहुत आसान है, 8 into 1 8 into 2 करके हम लोग लिख सकते हैं। ये बोलने में बहुत आसान है, ये कॉपी में मैथमेटिकली सॉल्व करने में बहुत आसान है, लेकिन यही चीज को हम अगर हम लोग कोडिंग के हिसाब से करने जाएंगे तो कुछ कोडिंग लिखना होता है। सो दैट कोडिंग नाउ हम लोग ये बोल सकते हैं, तो कोडिंग पे भी हम लोग ये लिख सकते हैं, 8 को कोई वेरिएबल पे ले लेंगे, a into 1 a into 2 करके लिख जाएंगे। अब ये चीज आता है कि हम लोग कोडिंग जब कर रहे हैं तो हम लोग को ध्यान पे ये रखना होगा कि कितना मिनिमम लाइन ऑफ कोड हम लोग लिख सके, जबकि ये मिनिमम लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने में टाइम सबसे कम लगे। हम लोग कोड तो किसी भी तरह से लिख सकते हैं, एक सिंपल एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम का हम लोग 20 लाइन भी लिख सकते हैं, एक एडिशन ऑफ 2 नंबर ऑफ प्रोग्राम का 1 लाइन भी लिख सकते हैं। तो कौन सा वाला बेटर है? 1 लाइन वाला बेटर है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करने में सबसे कम टाइम लगेगा। तो ये सब फैक्टर्स बहुत याद रखना जरूरी होता है। तो उस हिसाब से हम लोग को लूप से जो लूप्स हम लोग यूज करके ये सब चीज करते हैं, जहां पे लाइन ऑफ कोडिंग
सबसे कम किया जा सकता है। जितना जरूरत है हम लोग उतना ही लाइन ऑफ कोड्स लिखे, उससे ज्यादा ना लिखे। तो दिस इज द कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ एनी टाइप ऑफ दिस एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो अभी हम लोग बहुत टाइप के एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट ये सब लेके बात किए। तो ये एल्गोरिदम के एडवांटेज क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस एल्गोरिदम, क्यों हम लोग ये एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट यूज करें। अभी मैंने बहुत डिस्कशंस किया इसके बारे में, तो उससे पता ही चल सकता है कि क्यों हम लोग को जरूरत है ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का। बिकॉज ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट अगर हम लोग पहले से प्रॉब्लम स्टडी करने के बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को अगर लिखते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन और जो क्वेरी है, उसको सॉल्व करने के टाइम हम लोग एक एक स्टेप देख के इजीली उसका कोड लिख सकते हैं। तो दैट इज व्हाई उसके हिसाब से एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और फ्लो चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या है, हम लोग को स्टेप वाइज, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, कौन सा पहला वाला होगा, कौन सा दूसरा वाला होगा, हर एक को स्टेप बाय स्टेप हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दिमाग पे हम लोग को बार बार जोर नहीं देना पड़ेगा, अरे इसके बाद का स्टेप क्या था। हम लोग कॉपी पे पहले ही लिख लिए हैं कि ये पहले एक स्टेप होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा। तो हम लोग देख के उसके बाद उस हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं कि इसके पहले बाद वाला स्टेप पे हम लोग को क्या करना है। ठीक है ना। तो एक डेफिनेट प्रोसीड्योर लिखा होता है, हम लोग पहले ही लिख लेते हैं। तो जो हम लोग को जो प्रॉब्लम है, जो क्वेरी है, उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी आती है। तो दिस इज द थिंग ऑफ एल्गोरिदम। तो अभी हम लोग कैसे एल्गोरिदम लिखते हैं ये भी हम लोग देखा है उस एग्जाम्पल पे, कि पहले एक इनपुट को डिफाइन करना होता है, वेरिएबल्स को डिफाइन करना होता है, एल्गोरिदम प्रोसेस को डिफाइन करना होता है, एंड देन आउटपुट आएगा। ठीक है ना। तो एल्गोरिदम फ्लो चार्ट ये हम लोग तो बात कर लिए। अभी जो मैंने बात कर रहे थे कि हम लोग फ्लो चार्ट पे देखे हैं बहुत तरह का सिंबल और शेप देखे हैं। एक फ्लो चार्ट पे हम लोग बहुत तरीके का सिंबल और शेप्स देखे। हर एक सिंबल, हर एक शेप्स का कुछ पर्टिकुलर मीनिंग है। हम लोग उस पर्टिकुलर मीनिंग के हिसाब से उस शेप को यूज करते हैं। तो क्या है, पहले हम लोग का शेप है कुछ, हम लोग ओवल शेप यहाँ पे देख रहे हैं। जो कैसे यूज किया जाता है, जब भी हम लोग कोई ओवल शेप यूज करेंगे कहीं फ्लो चार्ट पे, तो उसका मतलब होता है कि ये शुरू और एंड के लिए, स्टार्टिंग और एंड के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग अगर उस पिक्टोरियल एग्जाम्पल पे जाए, ठीक है ना, तो अगर हम लोग इस एग्जाम्पल जाते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट एंड स्टॉप पे हम लोग ये ओवल शेप वाला फॉर्मेट यूज किए हैं। मीन्स जब भी कोई चीज शुरुआत में शुरू हो रहा है या जब भी कोई चीज खत्म होने वाला है, तो हम लोग उस हिसाब से और उसके लिए हम लोग ये ओवल शेप यूज करते हैं। तो हर एक चीज का हर एक पर्टिकुलर मीनिंग है, उस हिसाब से हम लोग को फ्लो चार्ट पे वो यूज करना होता है। सो फॉर द स्टार्ट एंड द स्टॉप वी हैव टू यूज द ओवल शेप। स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए हम लोग को ओवल शेप यूज करना होता है। फिर क्या है, पैरेललोग्राम। हम लोग कुछ पैरेललोग्राम शेप देख रहे हैं, जो हम लोग का इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन है, जो हम लोग का इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन है। तो हम लोग जब भी कोई इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग ये पैरेललोग्राम का सिंबल यूज करते हैं, इनपुट और आउटपुट का सिंबल। तो फिर से हम लोग को एग्जाम्पल चलते हैं, जहां पे देख सकते हैं कि देखो, इन द स्टेप्स दैट इनपुट वैल्यू ऑफ ए, input value of a, step 2 algorithm, step 2 input the first number a, input the second number b, step 2 and step 3। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ इनपुट ले रहे हैं ना, जो यूजर से। तो या कुछ भी इनपुट वैल्यू होगा, तो ये इनपुट वैल्यू कहाँ पे है, पैरेललोग्राम सिंबल पे। ये इनपुट वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, पैरेललोग्राम सिंबल पे। सेम एज हम लोग का आउटपुट सेक्शन पे भी ये पैरेललोग्राम का शेप यूज होता है। तो स्टेप 5 डिस्प्ले सम और प्रिंट सम। स्टेप 5 पे क्या है, डिस्प्ले सम और प्रिंट सम। तो ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है जहां पे हम लोग को आउटपुट शो करना होगा। तो वो भी पैरेललोग्राम के शेप पे है। तो जब भी कोई इनपुट या आउटपुट सेक्शन आएगा, वो हमारा जाएगा पैरेललोग्राम के शेप के अंदर। जब भी कुछ स्टार्ट या स्टॉप पे जाएगा, वो जाएगा हमारा ओवल सेक्शन के अंदर। तो हर एक पर्टिकुलर शेप का कुछ पर्टिकुलर मीनिंग है और उस हिसाब से हम लोग उसको यूज करते हैं। रेक्टेंगल फॉर द प्रोसेसिंग, यूज्ड फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड डाटा मैनिपुलेशन। तो हम लोग जब भी कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, मॉड्यूलोस, एनीथिंग, बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है। हम लोग अगर कुछ भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं और कुछ भी डेटा मैनिपुलेशन का काम करते हैं, तो वो जाएगा हमारा रेक्टेंगल शेप के अंदर, वो जाएगा हमारा रेक्टेंगल शेप के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रोसेस पे, इस एल्गोरिथम ऑफ फ्लो चार्ट पे
sum equal to a plus b, it is a process और it is a arithmetic operation. ये यहाँ पे हम लोग का क्या काम हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का एडिशन हो रहा है, जहाँ पे दो नंबर का एडिशन हो रहा है. So that's why it is a data manipulation और it is a arithmetic process. तो ये हमारा जा रहा है रेक्टेंगल शेप के अंदर. तो हर एक एल्गोरिथम स्टेप्स, अगर हम लोग पहले एल्गोरिथम स्टेप्स को डिफाइन कर लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग हमारा फ्लो चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं. सो एल्गोरिथम इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम. एंड फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए भी हम लोग एल्गोरिथम हम लोग का बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि स्टार्ट स्टॉप, कौन सा वाला स्टार्ट है, कौन सा वाला स्टॉप है, कौन सा वाला हमारा इनपुट है, कौन सा वाला हमारा आउटपुट सेक्शन पे जाएगा, कौन सा वाला हमारा डेटा मैनिपुलेट का काम कर रहा है, सब कुछ हम लोग को देखना होगा. और ये हर एक चीज हम लोग को एल्गोरिथम के हिसाब से ही मिलता है. तो एल्गोरिथम फ्लो चार्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग. फिर हमारा कुछ डायमंड शेप है जो कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है. डिसीजन मेकिंग की अभी हम लोग ने कुछ बोला, क्या हम लोग इसका भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे आगे भी. डिसीजन मेकिंग का मतलब है, मान लीजिए दो चीजें, ट्रू फॉल्स का कंडीशन है, अगर ये वाला कंडीशन सही होगा तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, अगर ये वाला कंडीशन सही नहीं होगा तो ये फॉल्स होगा. तो यह कहाँ हो रहा है, ये यहाँ पे दो चीज आ रहा है, यहाँ पे हम लोग कुछ डिसीजन मेक कर रहे हैं कि अगर ये सही है तो ये ट्रू होगा, ये एक डिसीजन है. अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट आएगा, तो ये भी एक डिसीजन है. तो हम लोग को डिसीजन मेक करना होगा बेस्ड ऑन द ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू और फॉल्स के हिसाब से हम लोग को कुछ डिसीजन फाइनली में आउटपुट पे लाना होता है. तो उस पर्टिकुलर उस हिसाब के लिए हम लोग ये डायमंड वाला शेप यूज करते हैं. एरोज टू ड्रॉ द फ्लो प्रोसेस, मीन्स फ्लो प्रोसेस को हम लोग ड्रॉ करने के लिए एरो यूज करते हैं. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एरो बहुत सारे यूज है हर एक प्रोग्राम पे, कि एरो यूज हो रहा है, हर एक प्रोग्राम पे एरो यूज हो रहा है. तो ये एरो हम लोग को डिफाइन करता है कि प्रोसेस कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है. इट इज अ फ्लो ऑफ प्रोसेस कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है. हम लोग हर एक फ्लो चार्ट पे देखेंगे कि वहां पे कुछ एरोस मेंशन्ड है, और एरोस के हिसाब से ये काम होता है. ठीक है ना. तो हर एक चीज पे हम लोग ये देख सकते हैं. सर्किल टू पेज कनेक्टर मीन्स देयर आर, ये बहुत सारा प्रोसेस है. तो लेकिन हम लोग का बेसिक जो होता है ये 5 जो हम लोग का हर एक जहाँ पे यूज होगा, ओवल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, डायमंड एंड एरोस. ये 5 चीज हम लोग का हर एक जगह पे यूज होता है, और उस हिसाब से हम लोग का फ्लो चार्ट ड्रॉ करना पड़ता है. तो आज के लिए बस इतना ही. हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास पे यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम लोग हर एक एग्जाम्पल को लेकर डिस्कस करेंगे, और उसके हिसाब से उसका फ्लो चार्ट क्या ड्रॉ होता है, उसका एल्गोरिथम स्टेप्स क्या होता है, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे. क्योंकि आज के लिए फिलहाल टाइम खत्म है. तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो अपना रेज कर सकते हैं, या तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का क्वेरी सॉल्व हो सकता है. अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है. अगर किसी ने अपना अटेंडेंस पे नाम नहीं लिखा है तो उसका नाम अपना चैट बॉक्स पे लिख दीजिए फॉर द अटेंडेंस पर्पस. तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन द सेशन, एंड टेक केयर एंड स्टे सेफ इन योर होम. अजय कुमार, बोलो अजय. Hello, sir. बोलो. Sir, in third semester CSC branch, which language